नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने सलवासा में 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल के पहले चरण का किया शुभारंभ। 2500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का दिया उपहार। कहा, आधुनिक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषा मुद्दे पर स्टालिन पर साधा निशाना। मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा तमिल में देने को कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डबलिन में आतंकवाद को बताया प्रमुख चुनौती। दुनिया से एकजुट होकर निपटने का किया आह्वान। मथुरा के बरसाना में सीएम योगी ने खेली फूलों की होली। कहा, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की है बारी। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त अभियान जारी। नारायणपुर में 40 लाख के 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पिछले 1 साल में अब तक 92 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमन व दीव की यात्रा पर हैं। पीएम ने सिलवासा में नमो अस्पताल के पहले चरण का शुभारंभ किया। पीएम ने अस्पताल भवन का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। ये 450 बिस्तरों वाला अस्पताल है जो कि 460 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। केंद्र शासित प्रदेश में ये विशेष रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की पीसी में। Which falls on 12th of March. As the chief guest, a contingent of Indian Defence Forces will participate in the celebrations, along with a ship from the Indian Navy. Prime Minister visited Mauritius in 2015. During the visit, Prime Minister will call on the President of Mauritius, meet with the Prime Minister of Mauritius, and hold several other meetings with important dignitaries, senior leaders from the country. More in regard to the visit, we are issuing a press release. You will get more details from this document. With that, I open the floor for questions. Shall we begin here? Huma? Siddiqui, so there have been the Trump administration has talked about retaliatory tariffs. What is India's take on that? उमा शेखर NDTV से। हालांकि एक प्रेस रिलीज आई है जो इजराइल ने 10 भारतीयों को बचाया है, लेकिन किन परिस्थितियों में वो वेस्ट बैंक गए, इस बारे में कोई तफसीलात मिली है? Hi sir, Siddhant from Beyond. Sir, we have seen the statement of the MEA on what has happened in terms of the Khalistani extremists breaching the security of EM's motorcade. So what is your assessment in terms of how much is this a concern in terms of India-UK relationship, and have you conveyed the concerns with the UK authorities regarding what has happened, the security breach? Okay. Sahil? Sir, I'm Sahil Pandey from ENI News Agency. A delegation from Bangladesh was in India for discussion regarding Ganga Water Treaty this week. Can MEA provide details of the discussion? Thank you. Okay. Siddhant? Hi sir, I'm Siddhant from CNN News 18. My question is also related to Bangladesh. Sir, a new party, National Citizen Party, NCP, led by the student group Students Against Discrimination, has been formed. This indicates a possible rift with the caretaker government that is witnessing a chaotic internal security situation. How does India see this development? Okay, I have 5 questions here, so let me address them and then we come back for more. First, Huma, regarding your questions on the announcement made by
President Trump. We had earlier also addressed and put forward our point of view, and we had said that, and again I would like to repeat, that during Prime Minister's visit to the United States in last month, that is on February 2025, both sides had announced that they will engage and negotiate a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement. You would have known that Commerce Minister was visiting the United States, where he met his counterparts. The two governments are in the process of advancing discussions on a multi-sector bilateral trade agreement. And as you would have seen in a joint statement also, I would like to repeat what we had mentioned there. Our objective through the BTA is to strengthen and deepen India-US two-way trade across goods and services, increase market access, reduce tariff and non-tariff barriers, and deepen supply chain integration between the two countries. So that is how we look at the issue of tariff as far as India-US is concerned. Uma Shankar, your question regarding Israel. See, 10 Indian, that is what we understand, 10 Indian workers, they were in the construction business, construction sector. They went missing, and after they had gone missing, the Israeli authorities tried to locate them. They were located in West Bank. From there, they have been traced, they have been got back to Israel, and this matter is being investigated for more details as to how they went and etc. And our embassy is in touch with the Israeli authorities for the safety and for the well-being of these Indian nationals. So as and when we have more update into the investigation being done, we'll share more details with you. But these all 10 Indian nationals who had gone to West Bank, they are in Israel, and they are being looked after. Sorry? अच्छा, देखिए 10 हमारे भारतीय नागरिक जो इजराइल में के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे थे, वो उनको कुछ दिन से शायद उनका पता नहीं चल रहा था, तो उनको देखा गया कि वो वेस्ट बैंक में काम कर रहे हैं। वहाँ से फिर उसको इजरायली सरकार के अथॉरिटीज़ लोग ने वहाँ पर उनको देखा और वहाँ से उनको वापस लाए इजराइल में। और ये मसला किस तरीके से गए, क्यों गए, क्या मंशा थी, इसी पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो हमारी वहाँ राजदूतावास है वो इजरायली सरकार के साथ इस प्रसंग में लगातार बात कर रही है। हमारे जो नागरिक हैं, ये 10 नागरिक जो हैं, उनके हित के लिए, उनके वेलबींग के लिए, और आगे जैसे भी हमको और जानकारी मिलेगी हम आपसे साझा करेंगे। Siddhant, on the issue of security breach that happened during the visit of External Affairs Minister to UK, yesterday you would have seen that we had made a statement. I had made a statement in response to some of the queries from the media. I would like to again reiterate that we have conveyed a deep concern to the UK authorities about the breach of security arrangements by UK-based separatist and extremist elements during External Affairs Minister's visit. There is a larger context to the incident, and it's important to understand that. It brings out both the license accorded to such forces as well as indifference to their intimidation, threats and other actions aimed at impeding our legitimate diplomatic activities in the UK. While we have noted the statement issued by the UK Foreign Office on the matter, our view of its sincerity would depend on the action taken against culprits on this and previous occasions. हिंदी में तो नहीं चाहिए? साहिल, आपको तो अंग्रेजी आता है। विदेश मंत्री की सुरक्षा में लगे सेंध को लेके हमने यूके सरकार से अपनी गहरी चिंता जताई है।
इसके पीछे अलगाववादी और उग्रवादी लोग कहाँ थे जो आप जानते हैं। इस घटना के पीछे एक संदर्भ है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। इस घटना से यह पता चलता है कि यूके में जो अलगाववादी तत्व लोग जो वहां रह रहे हैं, उनको एक प्रकार से ऐसा लगता है कि उनको लाइसेंस मिला हुआ है, दे दिया गया है, या ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो लोग हैं वो उनकी हरकतों को या तो सीरियसली नहीं लेते हैं या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और शायद इन्हीं कारण से उनको अनदेखा भी करते हैं। यही कारण है कि ये लोग धमकाने के लिए, डराने की कोशिश करते हैं, और इससे हमारी राजनयिक कार्य पर बाधा आता है और बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यूके के विदेश विभाग ने एक कथन यानी कि स्टेटमेंट जारी किया जिसको हम लोगों ने देखा है, लेकिन क्या वे इस कथन में कितना विश्वास रखते हैं इस बात का तभी पता चलेगा, इसकी पुष्टि होगी जब इन घटनाओं के पीछे जो दोषी लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो या करेंगे वो। Sahil, your question is regarding the Ganga Water Treaty. Recently, the 86th meeting of the Ganga Water, this technical committee meeting took place in Kolkata. It happened on, I think, 6th of March. Such meetings, this is a regular routine technical meeting. Such meetings happen thrice a year, and it is part of the structured engagement of meetings that we have in place between both countries. As part of the Ganga Water Treaty, which was signed in 1996. At the meeting, the two sides discussed all matters related to Ganga Water Treaty, including measurement of flow of water flow and other issues of mutual interest on this particular subject. Siddhant, your question was regarding the setting up of a party there, as well as this deterioration in security situation. See our position, you know that we support a stable, peaceful, inclusive and progressive Bangladesh in which all issues are resolved through democratic means and by holding inclusive and participatory elections. We remain concerned about the deteriorating law and order situation, as you mentioned, which has been further exacerbated by the release of violent extremists who were sentenced for serious crimes. Can we take more questions? Sanjeev? Good afternoon, Sanjeev Barua from The Week. I have this question. The Chinland Council and the Interim Chin National Consultative Council, they have signed the pact reportedly in the presence of the Mizoram Chief Minister. The political advisor to the Mizoram Chief Minister, who is also a legislator, has said that it was on the behest of the MEA that the CM made efforts to unite the factions. Is it so? What is the MEA's response to this? Okay. Sudhi? Sir, Shri Ranjan from Bloomberg, sir. On the issue of your Commerce Minister being in US, so can you give us an understanding as to when he met his counterparts in America, and has India got an assurance or any kind of on an understanding that the reciprocal tariffs is not going to hit India on 2nd of April as threatened by President Trump? And secondly, sir, if I can ask a second question, if you could give us an understanding of Foreign Secretary's visit to Russia. Has the Ukraine war or the peace plans, various peace plans being discussed, has he been briefed on that? Okay. Manish? सर, मैं मनीष हूँ, TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ललित मोदी को लेकर है। ललित मोदी को भारत वापस लाने को लेकर MEA का भी क्या स्टेटस है? और दूसरी बात, क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेश मंत्रालय की अभी हम प्रेस वार्ता देख रहे थे और सीधे आपको ले चलते हैं सिलवासा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं।
सिलवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने उन पर फूल बरसाए और बेहद खुशी के साथ उनका स्वागत किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुजरात दौरे पर सूरत में प्रधानमंत्री सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान का शुभारंभ करेंगे। सूरत में लगभग 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलेगा। सूरत में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस आयोजन के लिए एक भव्य गुंबद बनाया गया है और अन्य सजावट की गई है। इसके बाद कल पीएम मोदी नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान करेंगे। भाषा विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराने का जिक्र कराते हुए स्टालिन से आग्रह किया कि वो भी तमिलनाडु में स्थानीय भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा देने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया कि सभी 8वीं सूची की अनुसूची की भाषाओं में अब हमारे युवा परीक्षा दे पाएंगे। तमिलनाडु के युवा भी अब तमिल में परीक्षा दे पाएंगे। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्रातिशीघ्र किया जाए। और मैं मानता हूं इससे न केवल अपनी मातृभाषा मजबूत होगी और तमिल माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को आगे पर समान अवसर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ केंद्र पर निशाना साधा था। स्टालिन ने 3 भाषा नीति के माध्यम से हिंदी भाषा पर हमला किया था और कहा कि भाषाई समानता की मांग करना अंध राष्ट्रवाद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि तमिल भाषा की बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले आज तमिलनाडु के रानीपेट के आरकोणम में CISF के 56वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
अमित शाह ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और CISF पत्रिका सैनिटल का विमोचन किया। CISF के जिन सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सेवा पदक और वीरता पदक प्रदान किया गया था, उन्हें अमित शाह ने पदक से अलंकृत किया। इसके साथ ही गृह मंत्री CISF की कई पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री ने CISF की साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने CISF के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा CISF के बिना संभव नहीं है। देश के कई कोनों में, चाहे बंदरगाह हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगभग रोज 1 करोड़ लोगों की आवाजाही को हर खतरे से सुरक्षित करने का काम अपने CISF के जवान, और 1 करोड़ लोगों की आवाजाही देश के औद्योगिक विकास, देश के शैक्षणिक विकास और देश के सुचारू संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और CISF ने उसको जब से संभाला है, एक भी घटना चूक की नहीं हुई है। हमारे एयरपोर्ट भी सुरक्षित रहे हैं, हमारी बंदरगाहें भी सुरक्षित रही है, हमारी मेट्रो जो उनके सौंपी गई वो भी सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में रंग उत्सव 2025 के शुभारंभ हेतु आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। CM योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बजट में ब्रज भूमि के विकास के लिए प्रावधान है। अयोध्या और काशी के सौंदर्यीकरण के बाद अब बारी ब्रज भूमि के कायाकल्प की है। विकास के कार्य यहां आगे बढ़ेंगे। इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। गौरव द्विवेदी उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के उपाध्यक्ष को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में होने वाले वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रसार भारती के CEO ने उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो कंपनी के साथ पहले से ही मौजूद समझौता ज्ञापन के तहत सह निर्माण और सामग्री विनिमय पर भी जोर दिया। इस मौके पर DD न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार भी मौजूद रहीं। The Government of India Ministry of Information and Broadcasting will be organizing a global summit called the World Audiovisual and Entertainment Summit, WAVES, in Mumbai this year from the 1st to 4th of May. We were here to invite the representatives and the top leadership of the National TV and Radio Company to participate in this summit, which will discuss various aspects of the media landscape during these 4 days. Along with that, there are many challenges which are open for creative people and technology companies from various countries, and the finalists will get an opportunity to come and participate in the program in Mumbai. So I request all the creative persons and all the technology persons from Uzbekistan to also participate in these online challenges and be a part of this program. इस मौके पर DD न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहले से ही समझौता ज्ञापन मौजूद हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। A lot of information from India can be shared with your
news channels, got a presentation to the audiences in Uzbekistan. We already have a MOU in place. We will be very happy to activate it and work more closely together for news cooperation. तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।